Good morning, children. Good morning to all of you. Yesterday we were doing, or day before yesterday on Sunday, we have completed lesson 1. And now open page number 6. Open page number 6. ABC, and we will do ABC of the lesson. The A of B, take the correct option. That is, future generation will depend on solar energy because it is inexhaustible. C. Have you done? Inexhaustible. Now, which one of the following resource can be recycled? Gold, land, coal, natural gas. Gold. Gold. All the biotic resources include living beings, inexhaustible resources, non-living or renewable. That is non-living. Abiotic, non-living. Available resources which are not being tapped fully for the time being are called potential resources. Are called potential resources. D. Are called potential resources. D. Which one does not promote conservation of resources? Use as much as resource as required. That is C. That is C. Now फिर से एक बार देख लीजिए. Future generation will depend on solar energy because of it is inexhaustible. C. Number 2, which one of the following resource can be recycled? That is A, gold. Number 3, all the abiotic resources include non-living things. B, available resources which are not being tapped fully for the time being are called potential resources. D. Number 5, which one does not promote conservation of resources? Use as much resource as required. ठीक है. Now fill in the blanks. Can be used again and again after processing. Renewable. Metals or renewable resources can be used again and again after processing. Or metals. I think renewable, na? Renewable. Not metals. Only metals nahi. Renewable. On the basis of occurrence, resources are qualified into 2 categories, natural and man-made. Natural and man-made. This is the fill in the blanks. Natural and man-made. Now, number 3, with advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. Number 3, 4, developed countries are economically self-sufficient and technically advanced. Technologically या technically advanced. Technologically ज़्यादा अच्छा word होगा. Number 5, the potential resource need a detailed survey for estimating their quantity and quality. The potential resources need a detailed survey for estimating their quantity and quality. Write a technical term or an appropriate word for each of the following statements. Any material which is used to satisfy human needs.
any material which is used to satisfy human need. What is that? कोई आंसर बताएंगे? Any material that is used to satisfy human need, उसको क्या कहते हैं? कोई बताएंगे? Resources. Very good, बहुत बढ़िया. Resources. Any material which is used to satisfy human need, that is resources. Number two, resources which cannot be renewed, non-renewable. Number three, resources which are created by human being, man-made resources. Number four, the resources which are surveyed and developed, actual resources. Sustainable and optimum utilization of resources, conservation. That is conservation. Very good. So इसमें number one, any material which is used to satisfy human needs, that is resources. Number two, resources which cannot be renewed, non-renewable resources. Number three, resources which are created by human being, man-made resources. Number four, the resources which are surveyed and developed, actual resources. अभी रिपीट कर देते हैं, इसके बाद पहले इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद. The resources which are surveyed and developed, actual resources. Number five, sustainable and optimum utilization of resources, that is conservation. Next, I am going to repeat fill in the blanks. एक बार फिर से जिनका छूट गया वो fill in the blanks को फिर से देख लेंगे. Number one, dash can be used again and again after processing, that is renewable resources. Renewable resources can be used again and again after processing. Number two, on the basis of occurrence, resources are classified into two categories, natural and man-made. Number three, with advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. With advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. Number four, developed countries are economically self-sufficient and technologically advanced. Number five, the potential resources need a detailed survey of for estimating their quantity and quality. Is it clear? किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है? Room number was changed. Who is saying? No. Now, children, this is the D. Answer the following questions in brief. Utility and value of a resource vary from time to time and place to place. Give any three examples to support and statement. The statement. Page number 1 में जाइए. That is the page number 1 का थर्ड पैरा देखिए आप. देखिए यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स, लास्ट पैराग्राफ देखिए. यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स varies from time to time and place to place. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल 1 होगा, human civilization flourished. Earlier, human civilization flourished along the river valleys as they used water for irrigating field. ये पहला हो गया, place to place. Number 2 होगा, now human beings are using water for generating energy. वहां पर यूज इरिगेशन फील्ड के लिए, लेकिन आप देखिए अब उसी को देखिए किस तरह से यूज करा वाटर को. नाउ ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज. अब इतने काम में करने लगा. नंबर 3 हो गया,
चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया, मतलब वाटर से विंड एनर्जी भी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज आर द 3 एग्जांपल्स जो आपको दिया है कि 3 एग्जांपल्स आपको देना है, यू हैव टू गिव 3 एग्जांपल्स। क्वेश्चन है यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, गिव एनी 3 एग्जांपल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यू हैव टू वही एग्जांपल आपको तीनों देना है। और क्वेश्चन को एक थिंग जो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िए और क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ। तो जब आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, इसीलिए उनको ज्यादा दिक्कत होती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो एग्जाम के समय में ही शुरू से इस बात को याद रख लीजिए कि हमको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जो नहीं समझ में आता है उसको भी पढ़ना है। अगर आप क्लास लेक्चर को अटेंड करते हैं सीरियसली, तो आपको याद भी आ जाएगा कि उस समय मैडम ने क्या आंसर लिखने के लिए मुझे बताया था। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के लिए याद कर लीजिएगा। आर्यन राज पांडे, अब आप जो है हम उसको नहीं कर पाएंगे, आप लोग जो है थोड़ा सा YouTube पे देख लीजिए, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ने ही नहीं देते। Some students have a habit that they always create obstacles during the class time. अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 बार 3 बार बताया जाता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, हमको बताइए। क्योंकि अब एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ गए और फिर आप कहिएगा कि उसको रिपीट करिए, तो इसके लिए आपको जो आपको जब YouTube पर रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा तो आपको आपका हो जाएगा। प्रिया कुमारी, आप जिस भी सेक्शन में हो अपने क्लास टीचर को बोलिए वो आपको ऐड कर देंगे। I will not add you. I am to add you because the class I am a class teacher and I add only my students in my classroom. I am not an authorized person. अगर आपको इसके लिए है तो इंटरनेट इशू है तो आप उसको फिर बाद में देख लीजिएगा। आर्यन राज आदित्य, आप उसको YouTube पर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट इशू तो अभी भी आपका बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को D1 को हम आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, क्योंकि अभी उसी को हम लोग कर रहे थे। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस पर अलग अलग हो जाता है। अब उसको कहता है गिव एनी 3 एग्जांपल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब अपनी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहता है आपको 8G की आप स्टूडेंट है श्री श्रीवास्तव, आपकी क्लास टीचर जो है अमृता राज मैडम है, आप उनसे बात करें। ओके, इसके लिए हम लोग जस्ट टू राइट द D1 के आंसर के लिए हम लोग पेज नंबर 1 में जाएंगे, पैराग्राफ 3। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता जाता है। कैसे? अब इसको एग्जांपल देंगे। एग्जांपल 1, क्योंकि आपको 3 एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल 1, अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैली एज दे यूज वाटर फॉर इरिगेटिंग फील्ड, क्योंकि वो लोग पानी को यूज करते थे। पानी को देखिए क्या यूज करते थे, इरिगेटिंग से, उससे उस समय एग्रीकल्चर ही था, इसलिए उन लोगों ने उसको करने के लिए इरिगेशन वर्क के लिए यूज किए। नंबर 2, नाउ ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। अब देखिए उससे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वाटर से एनर्जी बना रहे हैं, इरिगेशन हो रहा है, नेविगेशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज में भी काम आ रहा है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर था, वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू। टाइम से देखिए ऐसा हो गया, और प्लेस टू प्लेस था। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया, उनके पास ज्यादा मोर एनर्जी इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दे आर मोर डेवलप्ड देन इंडिया। नाउ व्हाई आर ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट? नेक्स्ट है व्हाई आर ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। लिखेंगे द ह्यूमन बीइंग
ह्यूमन बीइंग, क्वेश्चन से ही लिखेंगे आंसर को। ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट because लास्ट देखिए, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट है, बिकॉज इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, बिकॉज इट इज ओनली with the help of human skill that the other resources can be developed, because it is only with the help of human skill that the other resources can be developed, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। नंबर 3, differentiate between biotic and abiotic resources, give examples for each। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज का लिखेंगे, बायो, पेज नंबर 3, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन का सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, रिसोर्सेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज, एग्जांपल बर्ड, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये हो गया। फिर उसी के नीचे लाइन चेंज कर लेंगे, ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा। दोनों का एग्जांपल भी हो गया, आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लीज पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज differentiate between biotic and abiotic resources, give example for each। page number 3, resources which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources, for example birds, animal, fish, forest etc। नंबर, फिर लाइन चेंज कर लेंगे, all non-living resources are known as abiotic resources, example land, water, mineral etc। जब हम बताते हैं उस समय पता नहीं बच्चा इस चीज को ध्यान देता है या नहीं देता, लेकिन आप लोग जो बीच में पूछते हैं कि हाउ टू राइट, तो राइट बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, बताने के पहले हम आप लोग को कौन सा लाइन से आंसर हो रहा है ये भी बताते हैं, और उसके बाद कौन से लाइन से कैसे लिखना है ये भी बताते हैं। बट सम स्टूडेंट्स वेदर दे आर पेइंग अटेंशन और नॉट, आई डू नॉट नो। नेट प्रॉब्लम अगर है तो जब भी आपका नेट ठीक हो जाए तो आपको यूट्यूब पे भी दिया जा रहा है, डायरेक्ट क्लास का, ये लाइव क्लास का यूट्यूब पे दिया जा रहा है। So please don't disturb during the class time। इतना हम बता देते हैं, क्योंकि ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, जो आप दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते। सो डोंट आस्क वाई आर, क्वेश्चन D2 का है, वाई आर ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। D2 को ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन को आंसर से ही लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट बिकॉज, पेज नंबर 1 का ही फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। ये इसका आंसर है, इसी तरह लिखना है, यू हैव टू राइट इन दिस वे। कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों को चिल्ड्रन, इसलिए प्रॉब्लम होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पीपल डू नॉट पे अटेंशन। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अगर देखे तो वो काम नहीं कर सकता है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन बट यू हैव टू पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास टाइम। चैटिंग का मौका मिल गया तो मतलब जो भी मन किया चैट किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमको आप लोग को म्यूट भी करना पड़ता है, इसलिए म्यूट करना पड़ता है, आई म्यूटेड यू ऑल बिकॉज जब आता है तब कोई भी बच्चा किसी भी समय गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देगा। तो क्लास चल रहा है ना, आपका गुड मॉर्निंग हम सुनना नहीं है, एक बार आप ज्वाइन कर लिए, गुड मॉर्निंग बोल दिए, आप खुद समझ लीजिए कि आई एम लेट इन द क्लास, नाउ आई डोंट हैव टू से गुड मॉर्निंग। लेकिन आप लोग को खुद कोई समझ नहीं, जब तक कि आप लोगों को कड़ा पनिशमेंट नहीं दिया जाए, आप लोग बात नहीं समझते। ऑनलाइन क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं होता है, आप समय पे आइए, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, यू विल गेट ऑल द आंसर, ऑल योर द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेरीज।
अब देखिए, अब पूछे हैं, प्रिया कुमारी पूछ रही है, मैम डू वी हैव टू यूज HW कॉपी? पता नहीं अब क्या पूछ रही है, जरा हम भी देख ले इनका 23 चैटिंग में, जरा मैं भी देख लूं प्रिया कुमारी का क्या है। प्रिया कुमारी, डू वी हैव टू यूज HW कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट? यस, फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव ओनली वन HW कॉपी जो कि आपको यूज करना है। यू हैव ओनली वन CW कॉपी। आगे का कुछ होगा तो आपको मैसेज दे दिया जाएगा आपके क्लास ग्रुप में। आई विल गिव द मैसेज मैं आपको दे दूंगी। सिर्फ कॉपी और बिना मतलब का ध्यान नहीं देना, ये तो बहुत ही गलत। और डिस्टर्ब करते रहना क्लास में बिना मतलब का क्वेश्चन पूछ पूछ। क्वेश्चन का कोई वैल्यू भी होना चाहिए। This time I am very aware because in the last session, online session, I have got अब जितने भी अब आशुतोष, will we have to write question answer in fair copy? What is meaning of the fair copy, Ashutosh? Will you tell me? I am asking one question from you. What is the meaning of the fair copy? I want to know, then I will answer your question. We have children, we have completed D1, 2 and 3. Now it is time for D4. Why are there a need for resource planning? Give any 3 reasons. Go on page number 5, children. Give 3 reason हम लोगों को देना है। तो आप हम लोग को देना है, देखिए लिखिए, there is a need for resource planning because there is a need. D4, why is there a need for resource planning? Give any 3 reason हम लोगों को देना है। तो हम लोग लिखेंगे there is a need for resource planning because there is because पेज नंबर 5 पे जाइए, अगर आपको मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, बिकॉज 3 एग्जांपल्स में ही हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट दे दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशियली otherwise mankind will have to face dire consequences. Because resources should be used judicially, otherwise mankind will have to face dire consequences. पॉइंट 2 दीजिएगा, इसी के नीचे वाला लाइन का लास्ट ये देखिएगा, दे आर एक वर्ड आ रहा है, दे आर रैपिडली डिप्लीट, बिकॉज के बाद पॉइंट 2 देंगे, रिसोर्सेज आर रैपिडली डिप्लीटिंग एंड नीड टू बी कंजर्व। Resources are rapidly depleting and need to be conserved. This is the second point. Third point, third line, conservation का second line देखिए, we must realize that nature and resources are not merely ours, they also belong to the future generation. Thus it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का मतलब, why there is a need for resource planning? Give any 3 reasons हमको देना है, रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों, इसका 3 पॉइंट हम लोगों को देना है। तो हम लोग को लिखेंगे there is a need for resource planning because, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत तो हम लोगों को है, अब क्यों है बिकॉज करके
0.1 देंगे, उस लाइन चेंज कर लेंगे, बिकॉज का लाइन चेंज कर लेंगे। और पेज नंबर 5 का लास्ट लाइन देखिएगा, रिसोर्सेज शुड बी, बिकॉज resources should be used judiciously, otherwise mankind will have to face dire consequences. पॉइंट 2 देखेंगे, पॉइंट 2 इसी का जो इसी के नीचे वाला लाइन जो लास्ट है, दे आर एक आ रहा है, तो रिसोर्सेज आर रैपिडली डिप्लीटिंग एंड नीड टू बी कंजर्व, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसलिए इसको रिजर्व होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। नंबर 3 के लिए कंजर्वेशन का सेकेंड लाइन, we must realize that nature and resources are not merely ours, ये सिर्फ हमारा नहीं है, they also belong to the future generation. Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. Now, children, I want that किसी ने भी अगर इसका आंसर लिखा है तो वो हैंड रेज करेगा, उससे हम पूछेंगे। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? Who will tell me उसको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? यस, शुभ नारायण। यस, शुभ नारायण, तुम बोलोगे आंसर को, पढ़ोगे। शुभ नारायण। यस मैम। हाँ चलो, D4 को यस मैम। हाँ, D4 को पढ़ो। There is a need for resource planning because resources should be used judiciously. Otherwise, mankind will have to face dire consequences. Point 2. Very good. They are rapidly depleting and need to be conserved. Point 3. We must realize that nature is and its resources are not merely ours. They also belong to the future generation. Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. बहुत बढ़िया, वेरी गुड शुभ नारायण। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव लिसन इट, आप लोग सभी ने इसको सुन लिया होगा आंसर को, और जो बच्चा ध्यान देता है वो देखिए वो लिख भी लेता है, आंसर को लिख भी लेता है, उसका आंसर भी देता है समय पर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन। आप अटेंशन अगर देंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यू विल राइट द आंसर बाय योरसेल्फ, because during the online classes we also provide all types of try to provide all types of teaching material, teaching aid to the students. ये हमारा भी काम है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना आपका काम। सिर्फ गुड मॉर्निंग और किस कॉपी में लिखें किस में नहीं लिखें, इसके लिए पजल होते रहें और टीचर को भी पजल करते रहें ड्यूरिंग द क्लास टाइम, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। यू ऑल ऑफ यू आर नॉट न्यू स्टूडेंट्स, ये हो चुका है। लास्ट ईयर भी आप लोग कॉपी किए थे, इस पर तो कॉपी का डायरेक्ट आपको मैसेज जा चुका है। You have got all types of message regarding the copy and all the things, so you must have to pay proper attention at the during the class time. अगर नेट प्रॉब्लम है तो नेट प्रॉब्लम के लिए आप YouTube जरूर देखिए, ये आप ही लोगों को देखने के लिए दे, तो YouTube व्यू बहुत कम होता है, बच्चे देखते ही नहीं है उसको। हम बताएंगे नहीं, प्रिया कुमारी, आई विल नॉट टोल यू कि तुमको किस कॉपी में लिखना है, तुम किसी कॉपी में लिख के रख देना, हम देख लेंगे। कॉपी के बारे में हमसे नहीं पूछो। ये किसी ने मुझे अभी मैसेज किया है, फिल इन द ब्लैंक्स का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो आपके बुक में जो मेटेलिक ओर दिया गया है तो वो तो एक ही एग्जांपल हुआ, लेकिन अगर इफ यू वांट टू राइट मेटेलिक ओर तो आप उसको लिख सकते हैं, मेटेलिक ओर कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, ये आप लिख सकते हैं उसको, मेटेलिक ओर आप लिख सकते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 1 में आप मेटेलिक ओर भी उसका आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। METALLIC मेटेलिक OREO मेटेलिक ओर, क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है ये, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी सही होगा, लेकिन अगर इफ यू आर
राइटिंग मेटेलिक कोड दैट इज आल्सो द राइट आंसर। बुक के कंसर्न में वही राइट आंसर ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 6 फैक्टर ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। अब लिखेंगे 6 फैक्टर ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड आर as follows, RASIs FOLLOWS are as follows. 6 factors on which the utilization of resources depend are as follows. पेज नंबर 2 में आप देख लीजिए, पेज नंबर 2 में नंबर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का 6 फैक्टर दिया हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, availability of capital, availability of water. Number 5, advancement of technology, tools, machines, etc. Number 6, availability of transport and communication facilities, etc. This is the right answer. Mention any 6 factor on which the utilization of resources depend. इसको लिखेंगे हम लोग 6 factor on which the utilization of resources depend are: first, availability of resources; 2, skill of human being; number 3, availability of capital; number 4, availability of water; number 5, advancement of technology; number 6, availability of transport and communication facilities. Now children, इसका 6 को बताइए, नंबर 6 का 5 का आंसर कौन बोलेंगे? शाश्वत राय। चलिए शाश्वत राय इसका आंसर बोलिए, नंबर 6 5 का। शाश्वत राय बोलिए, शाश्वत राय। 6 factors on which the yes ma'am, हाँ बोलिए। 6 factors on which the utilization of resources depend are as follows. हाँ, First, availability of resources; second, skill of human beings; third, availability of capital; fourth, availability of water; fifth, advancement of technology, tools, machines, etc. Sixth, availability of transport and communication facilities, etc. okay, good. Now it's Aditya Raj. No, it's Narayani. नारायणी, आप क्वेश्चन D1 का आंसर बताइए। नारायणी। Yes, ma'am. हाँ, utility and value of resource vary from time to time and place to place. Give any 3 examples to support that statement. बताइए। Utility and value of a resource varies from time to time and place to place. Example, human civilization flourished along the river valley as they used water for irrigating fields. 2. Now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries, etc. 3. China and United States of America are generating more wind energy than India. Very good, बहुत बढ़िया। Thank you, ma'am. यस, नंबर 2 का बोलेंगे, बच्चे बता रहे हैं इनको बोलना है। नंबर 2 सिद्धांत कुमार। सिद्धांत कुमार। सिद्धांत। Yes, ma'am. Yes. Number, why are human beings considered the most important resource for development? What is the answer of this? Human beings are considered the most important resource for development because it is only with the help of human skill that the other resources can be developed. Very good. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बोलना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स फॉर इच। वो बोलेंगी श्रेया कुमारी। श्रेया, चलिए बोलिए। श्रेया। श्रेया कुमारी बोलिए। Yes, ma'am. Resources which हाँ, are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources. For example, birds, animals, fish, forests, etc. Whereas all non-living resources are known as abiotic resources. For example, land, water, minerals, etc. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ चिल्ड्रन, किन्हीं ने पूछा फेयर कॉपी में लिखना है। आपके पास 2 कॉपी है। फिर से लास्ट, अब बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय क्लास, एक बार फिर से कॉपी का सुन लीजिए आप लोग। कॉपी आपके पास 2 कॉपी है, एक क्लास वर्क है, एक होमवर्क है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का होमवर्क मिलेगा आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, राइट A, B, C and D। आपका होमवर्क कॉपी में लिखा होना चाहिए, आपका लेसन मेंशन होना चाहिए। जब हम दे दिए उसके क्लास वर्क में हम टेस्ट लेंगे, वो आपका जो भी क्लास में ड्यूरिंग क्लास टाइम बोलेंगे कि ओपन योर कॉपी, तो आप CW कॉपी खोलें।
और किन्हीं को कुछ पूछना है? पूछना है का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, नॉट अबाउट योर कॉपी से रिलेटेड। कॉपी से रिलेटेड होगा, यूट्यूब सुन लीजिएगा, लास्ट लाइन सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कॉपी के बारे में मैडम ने क्या कहा। आई हैव गिव चैनल नेम भी कोई पूछ रहे हैं, यूट्यूब चैनल के नेम दीजिए। चैनल नेम जो है आपको लिंक दे देते हैं क्लास में, कल के भी क्लास में दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, डेली दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। नाउ हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।